Assalamu alaikum and a very good afternoon to every one of you. I am Asad Imran Malik. I am founder and master trainer at AIM Professionals. Today, I am going to lecture you about the importance of adopting freelancing as a full-time career. First of all, let's discuss about the freelancing. Freelancing can be defined as a self-employment condition where the individual works as an independent person rather than working for a specific company. These individuals are self-employed and are considered as independent contractors. They are hired by companies or individuals on part-time or short-term basis depending upon the terms and conditions set by the employer. Now let's discuss about the popularity of freelancing in Pakistan. If we look at the marketplace of Pakistan, we notice the fact that now working conditions have been changed. Pakistan youth is among the most talented individuals who are capable enough to build up their own future by opting for freelancing. The 9 to 5 job is not a dream for them anymore, like going companies to companies and referring resumes to different people. Now, after COVID-19 and the advent of the hybrid working environment, they prefer remote working options in which they are comfortable enough to work sitting in their homes, having a laptop, smartphone, and fast internet connectivity. 9 to 5 job in Pakistan is considered as a corporate slavery, as you stuck in a single domain for a couple of years. It demands you to be a corporate slave and do whatever your boss or manager instruct you to do. These all factors result in the mental depression, stress and anxiety, as well as sleeping disorders. The youth of Pakistan want to become entrepreneurs and to excel their career as freelancers as well. They believe that corporate jobs stop their career progression as they stuck in the same domain for many years. They never work on developing their leadership traits or setting up their entrepreneurship journey. Choosing freelancing allows you to be your own boss. Anyone can become a freelancer in his or her area of interest. For that purpose, you need to evaluate your expertise and must have the courage and motivation along with proper dedication to market your skills on different platforms. Today, as per the statistics of 2022, Pakistan ranks third in the freelance market. First two are United States and India. The top categories of Pakistan in freelancing are in IT and graphic designing sector. Now, let's discuss about the mindset of Pakistani people. As we have to discuss about the mindset and we have to change the mindset of the Pakistani people. आज मसला ये है कि जनरेशन गैप की वजह से ओल्ड जनरेशन आर नॉट फेमिलियर enough with the terms relating to work from home, freelancing or entrepreneurship. People believe that in Pakistan, only the business relating to food, clothes can only flourish. At their time, there were only limited opportunities. Now with the introduction of internet, ways of employment and doing work have been changed. Every field has various domains. It depends upon your level of expertise that what you want and to be. It has been observed that Pakistani parents never researched for better career opportunities. We can't blame them, as at that time sources of information were limited. They wanted their children to join the same field in which they were working without asking the preference of the child. Example, the doctor wanted his child to become a doctor and business oriented families wanted their child to become a part of their business. They sometimes even disagreed to entrepreneurship or freelancing. As per their mindset, a job is best for them. They don't even know the hard facts of the corporate job. Freelancing generated many employment opportunities as well. Many people have launched their own startup ventures by sourcing their work. Now let's discuss about the advantages of freelancing. In freelancing, there is more freedom,
more flexible hours, self-management, more learning opportunities, and it also facilitates you in developing your entrepreneurship skills. Now, let's discuss about the challenges of becoming a freelancer in Pakistan. There are three challenges which we are being faced as a freelancing in Pakistan. There is no proper mechanism of payment. There are pricing issues, and also the government taxes. They are the main hurdles that are causing the challenges of becoming a freelancer. Now, let's discuss about the working opportunities in freelancing marketplace. Here, I would like to describe the roles according to the industries in which you can adopt your career as a freelancer. यहाँ पे मैं आपको कुछ रोल्स बताऊंगा और इंडस्ट्रीज़ के का भी बताऊंगा जिसमें आप अपना करियर अडॉप्ट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर. सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के हवाले से बात करूंगा. आप लोग एज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाना चाहें फ्रीलांसिंग मार्केट में तो आप कौन से रोल्स देख सकते हैं. उसमें आ जाता है सबसे पहले अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर ऑनलाइन रिसर्च. उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए अगर तो उसमें आपके आ जाती हैं ब्रांड आइडेंटिटी और स्ट्रेटजी फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आप लोगोस वगैरह डेवलप कर सकते हैं, मार्केटिंग की चीज़ों को देख सकते हैं, उनके आपने डेवलपिंग उनको करके देनी है, वो चीज़ें आ सकती हैं. ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह या फिर उनके वो जो मार्केटिंग की टर्म जो चीज़ें होती हैं वो डेवलप करनी. ऑडियो वीडियो से रिलेटेड जिसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो की इन्हेंसमेंट्स कर सकते हैं, वॉइस ओवर्स दे सकते हैं, ट्रांसलेशंस कर सकते हैं. उसके बाद फिर आ जाती है इवेंट फोटोग्राफी. इवेंट फोटोग्राफी में आप कोई भी इवेंट को कवरेज कर सकते हैं, जैसे कोई शादी का इवेंट है या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर किसी का भी कोई इवेंट आपने मेमोरेबल करना है तो उसमें आप एज एन इवेंट फोटोग्राफर जा सकते हैं. ऑल यू नीड इज़ द बेस्ट कैमरा एंड प्रॉपर इक्विपमेंट्स फॉर स्टार्टिंग द करियर एज फ्रीलांसर इन दिस सेक्टर. उसके बाद राइटिंग से हवाले से बात की जाए अगर उसमें कॉपी राइटिंग की आ जाती हैं बातें, प्रूफ रीडिंग की आ जाती हैं, कंटेंट क्रिएशन की आ जाती है और क्रिएटिव राइटिंग की के रोल्स आ जाते हैं. अगली इंडस्ट्री से हवाले से मैं आपसे बताना चाहूँगा, उसमें आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं उसमें आप वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से कर सकते हैं काम, ऑटोमेशन कर सकते हैं जिसमें आपके SQA से हवाले से बात हो सकती है, जिसमें आप मॉडल टेस्टिंग वगैरह करनी है, उसकी मैनुअल SQA, ऑटोमेटिक SQA वो कर सकते हैं आप. कोडिंग के हवाले से कोडिंग आप कोर्स लिख सकते हैं. मोबाइल डेवलपमेंट ऐप्स वगैरह की डेवलपमेंट अगर आपको आती है आप उसमें जा सकते हैं, या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग यूजिंग वर्डप्रेस. नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो उसमें आ जाती है अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी. उसमें आप बिजनेस एनालिटिक्स के हवाले से वर्किंग कर सकते हैं, टैक्स प्रिपरेशंस के हवाले से बात कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और फाइनेंशियल एनालिसिस. नेक्स्ट आ जाती है लीगल इंडस्ट्री. लीगल इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात की जाए उसमें क्या क्या आप करियर अपना सकते हैं. उसमें आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्सेशन लॉ कंसल्टेंट, इंटरनेशनल लॉ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और स्टेनोग्राफी जिसमें आपने शॉर्ट हैंड वगैरह लिखनी होती हैं वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा साइंस से रिलेटेड. डाटा साइंस में एनालिटिक्स आ जाती हैं सारी, मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा प्रोसेसिंग, फिर उसकी डाटा माइनिंग, और ये सारा जो है ना ये इसमें आप कवर कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से, उसमें आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं इन सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, सोशल मीडिया हैंडलर बन जाएं आप अगर किसी के उसमें, या फिर आपने मार्केटिंग की जो चीज़ें होती हैं वो प्रिपेयर करके दे सकते हैं, स्ट्रेटजी बिल्डअप करके दे सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करके दे सकते हैं, और SEO बेस्ड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद ट्रांसलेशंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शंस कर सकते हैं आप, लैंग्वेज ट्यूटोरिंग कर सकते हैं, लीगल ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं ये आप इसमें अपना करियर को देख सकते हैं. इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के हवाले से बात की जाएगा तो उसमें आप कैड के हवाले से बात कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड कर सकते हैं, और मॉडलिंग के 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगा
moral ethics of a good freelancer कि एज अ फ्रीलांसर moral etiquettes क्या होते हैं एज अ फ्रीलांसिंग के तौर पे. Ethics are defined as a set of moral principles set by an individual that display their character, honesty, and dedication towards their work. Freelancing is just like other roles to have a proper code of ethics, and it should be followed with full commitment and dedication in order to be more consistent and more recognizable in the marketplace. Ignoring the fact that can cause you a lots of damage and can ruin your credibility in the marketplace. Not only you will suffer, but the image of your whole country will be affected from it. यहाँ पे मैं आपको moral ethics के बारे में बताऊंगा कि एक अच्छा फ्रीलांसर के बनने के लिए आपने कौन से कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट करना है. देखिए, हम लोग एज अ थर्ड नंबर पे इस वक्त फ्रीलांसिंग की मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है. इसी के लिए आपने अपने कंट्री को बिल्डअप करना है, तो उसमें आपको कोड ऑफ एथिक्स को भी देखना है. जैसे अभी देखिए, आपने हमें ये सुनने को मिला था कि अमेज़ॉन ने 13,000 अकाउंट्स को सस्पेंड किया है. वो इसी वजह से किया है कि हमारे उसमें कुछ मसले मसाइल होते रहे हैं. और देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग मार्केट काम कैसे करती है. फॉलोइंग एथिक्स हैं जो कि आपने अपने जहन पे रखने हैं जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. सबसे पहले लीगल फॉर्मेलिटीज़. देयर आर सम प्रोजेक्ट्स whose industries do not comply with your religious and cultural values. आपने इसको भी ज़हन में रखना है, ठीक है. उसके बाद अपनी डेडलाइंस और अपने वर्ड्स का पास रखना है, ठीक है. यानी कि इसमें मैं अब कहना चाहूँगा कि ऑनर योर डेडलाइंस एंड वर्ड्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू कुड create a proper agreement in writing considering terms and conditions in which both you and your client will mutually agree on the deadlines and quality of the work being assigned. Courtesy. Be courteous with the client and listen to his problems first and then provide solutions. If he is frustrated, calm him down by suggesting proper alternatives and solutions. Don't be rude with the client, as it ruins your credibility and it's a sign of negativity for you. Data privacy and security. The data received from your clients regarding the project should be properly stored, utilized, and disposed of properly after the completion. Ensure that you should not create a backup for future use or for someone else's project. यहाँ पे मैं अब आपको एक थोड़ा सा प्राइवेसी के हवाले से बताता हूँ. देखो, डाटा अगर आपको क्लाइंट से कोई मिलता है प्रोजेक्ट के हवाले से, वो बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है. उसको आप प्रॉपर्ली स्टोर करें और उसको यूटिलाइज़ करना, और उसके बाद उसको अपने कंप्लीशन के बाद आपने उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है और बैकअप नहीं रखना उसका. अपने प्रोजेक्ट के हवाले से आप शोकेस कर सकते हैं अपने स्किल्स को कि आपने ये काम किया है, लेकिन आप उसका प्रोजेक्ट जो है ना वो आप अपलोड नहीं कर सकते कहीं पर भी. ये मॉडल कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है. क्लियर? उसके बाद आपने आउटसोर्सिंग नहीं करनी. डू नॉट आउटसोर्स द वर्क इफ़ यू आर अनएबल टू डू इट. दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ यू. As deadlines are not met, work is not delivered. Sometimes in most cases, some cases के अंदर इस तरह की बात हो जाती है कि it is necessary to review the work for proofreading. Make sure कि आप अपने क्लाइंट को उसके बारे में बताएं, ठीक है. काम को आउटसोर्सिंग तब करें अगर आपने उसको प्रूफ रीडिंग करवानी है, तब आप उसको थोड़ा सा उसमें क्लाइंट को, लेकिन वो भी क्लाइंट की कंसेंट के साथ, ठीक है. इसके अलावा नहीं. Ensure constant communication. Make sure you maintain proper communication and update the client on weekly basis. Ask for suggestions and also provide feedback regarding his suggestions. यानी कि क्लाइंट के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है आपने, ठीक है. डेडलाइंस को मीट करना है, टाइमलाइंस को फॉलो करना है. जितने काम को उसने जो भी जिस तरह उसने कहा हुआ है, यानी कि आपने आपकी उसके साथ बात हुई है कि जी मैंने इसको इतने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, तो आप उसमें कंप्लीट करें. अगर वो मीटिंग का कहता है तो आपने उस टाइम पे अवेलेबल होना है, मीटिंग स्केड्यूल करनी है. देखिए, हमारे टाइमिंग और टाइम जोन और उनका टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम अवेलेबल हों और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में रहें, उसके साथ लूप में रहेंगे. इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, ठीक है, और उससे प्रॉपर फीडबैक और उससे डिटेल्स वगैरह लेते रहें.
लास्ट में मैं अब आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के टूल्स के बारे में बताता हूँ। फ्रीलांसिंग के टूल्स जो 2022 में बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त हैं, सबसे पहले फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, गुरु, वर्कचेस्ट, पीपल पर आवर, इलेंस, डिज़ाइन हिल और बीहेंस। ये फ्रीलांसिंग के टूल्स हैं इस वक्त जो कि ट्रेंडिंग चल रहे हैं 2022 के लिए। बहुत अच्छा वर्क इसके ऊपर आप अपना कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर अगर आपने काम स्टार्ट करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट टूल सबसे पहले लिस्ट पे आता है फाइवर, उसके बाद सेकंड नंबर पे अपवर्क, जहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। अब लास्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ बातें हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग मार्केट में अभी रिसेंटली एंटर हुए हैं और आपको पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या स्टार्ट करना है, इस फॉर दैट पर्पस ट्राई टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, clear your goals, and take trainings from freelancing industry experts on how to showcase and sell your expertise on various freelancing platforms to win projects. Make an effort to examine proposals, client requirements, and gigs made by various freelancers and clients. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के वर्किंग के बारे में बताना चाहूँगा कि आपने अगर आप रिसेंटली आप चाहते हैं कि मैं ये फ्रीलांसर बनूँ, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है आपके लिए और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले तो अपना गोल सेट करें, अपने आप को उसमें यानी कि अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं और आप क्या कर सकते हैं और कौन सी सर्विस आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, पहले तो ट्रेनिंग्स लेनी है प्रॉपर। आपको जो चीज़ पे आपको ग्रिप है आपको पहले वो अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपने कुछ अपने देखें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय लें और उस जो काम पहले कर रहे हैं उन लोगों से नेटवर्किंग करें, उनसे पूछें कि हाँ जी गिग्स कैसे बनाते हैं, प्रपोजल्स कैसे लिखते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। क्योंकि देखें मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपने फुल टाइम फ्रीलांसिंग करनी है ना तो इसमें हार्डवर्क और फुल टाइम एफर्ट बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और अपना एटीट्यूड भी बेहतर रखें ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच।